Good morning, student. Myself Manoj Chotia from Raghunath Vidyalaya, Ratangad. We completed our human physiology unit. Now the last unit of botany. In this unit, only two chapters. First, economic botany, and second is bioenergy. So today we discuss about bioenergy. This is chapter number 20, bioenergy. What is bioenergy? With the improvement in the living standard of man, there is a continuous increase in the demand of energy. These days, per capita consumption of the energy is considered as an indicator of development of a country. कोई भी कंट्री है उसकी डेवलपमेंट, वो कितना डेवलप्ड कंट्री है, विकासशील है, विकसित है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एनर्जी कितनी मात्रा में काम में ले रहा है. दीज डेज पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज कंसिडर्ड एन indicator of development of a country. Gross national production is directly proportional to the consumption of energy. According to an estimate, first of all, there is two types of energy: non-renewable energy and the source of energy are non-renewable sources and renewable sources. Upon them, energy are of two types: non-renewable energy and renewable energy. Non-renewable energy sources energy are those resources whose quantity is fixed and is reduced with its consumption. Therefore, it is sure that a day will come which will be lost these resources. Regeneration and recycling of these resources is not possible. Coal from the underground mines, minerals or fossil fuels, petrol, diesel, natural gas, nuclear materials, uranium, etc. All these are non-renewable source of energy. Second, renewable source of energy. There are many sources of energy whose regeneration can be done. Such sources are termed as renewable sources or renewable resources of energy, just like solar energy, hydroelectric power energy, wind energy, the energy tidal energy and the bioenergy resources are mainly included in this category. In this chapter, we studied about various aspects of bioenergy. First of all, people using of the word 82% of non-renewable source. Among these 82, or we can say out of 82, 76 is fossil fuel and only 6% is nuclear energy. Just like renewable source 18% यूज में आते हैं और उन 18% का 11% जो है वो बायोमास से होता है और 7% जो है वो हाइड्रो, जियोथर्मल, सोलर और विंड एनर्जी से ऑब्टेन्ड होता है. सो today's our topic is bioenergy. Energy is produced by biomass or living sources is called bioenergy. In general, the meaning of biomass is that weight of material which is produced by photosynthesis. Plants क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा और सोलर एनर्जी को है वो केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, तो उनका जो बायोमास है वो एनर्जी के रूप में काम में आ सकता है. Thus we can say the dry weight of a plant is a biomass. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ड्राई वेट है उस ड्राई वेट को अपन क्या कह सकते हैं? बायोमास कह सकते हैं. और वो बायोमास ही क्या करता है? एनर्जी के रिसोर्स के रूप में काम में आता है. बट वी ऑल नो दैट ऑल द एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्वाइव बाय द प्लांट्स. ये अपने को पता है कि हम जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर भी बायोमास है, लेकिन वो भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एनर्जी सोर्स के लिए प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं. Therefore, the total amount of organic material produced by all the living being or living kingdom can be terminated as biomass. From the point of view energy production during mythological period, plants are their wood burning was source of energy. With the scientific progress, various forms of energy source have developed. Today's urgent need is that maximum use of such as energy adopted, which can be produced in the form of renewable or bioenergy because following useful character of energy. First of all,
इट इज चीप। सबसे पहली बात क्या है, जो बायोमास से एनर्जी प्राप्त होती है उसके करेक्टर्स क्या है, सबसे पहले क्या है, इट इज चीप, रिन्यूएबल एंड कैन प्रोडक्ट्स एट लोकल लेवल, लोकल लेवल पे भी उसका प्रोडक्शन होता है। इट प्रोडक्ट्स लेजर अमाउंट ऑफ CO2 एंड SO2 टू विच देयर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन। अगर उसका हम ढंग से यूज में लेंगे तो CO2 और SO2 के रूप में जो पोल्यूशन होता है उसको हम घटा सकते हैं। फॉर its production raw material is easily available, waste and garbage is also useful for its production. And last beneficial aspect of bioenergy is because it is recycling is possible, therefore its continuous availability can be maintained. So ये सारे क्या है, अपने पॉइंट है किसके, रिन्यूएबल सोर्सेज के और बायो एनर्जी के। अब मेन सोर्स कौन कौन से बायो एनर्जी के वो देखिए। मेन सोर्सेज ऑफ बायो एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमास, सेकंड वुड, थर्ड बायोगैस और मीथेन, फोर्थ बायोडीजल, फिफ्थ इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च एंड लिग्नोसेल्यूलोज एंड सिक्स्थ एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री। सो starting from biomass, these are 6 sources of bioenergy. First of all, biomass, the main source of bioenergy is sunlight. Of the total solar energy reaching the earth, approximately it's only 0.2%. You have remember only 0.2% part is stored by the plants as biomass by photosynthesis. जो 100% सोलर एनर्जी आती है उसकी केवल 0.2% ही क्या करते हैं, प्लांट स्टोर्ड करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। All those material which are synthesis by photosynthesis are called biomass. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो भी स्ट्रक्चर्स प्लांट के अंदर बनती है, जो भी ऑर्गन बनते हैं, वो सारे के सारे क्या है, बायोमास कहलाते हैं। These are renewable source of energy. All those living substances or their waste which be source of energy are grouped under biomass. कैसे, प्लांट विद लिग्नोसेल्यूलोज सच एज यूकेलिप्टस, पाइनस, ल्यूसीनिया, मेज, सुगरकेन, बीटरूट, ये सब क्या है, एनर्जी के सोर्स है जो फोटोसिंथेसिस से बनी है। एक्वेटिक प्लांट लाइक आइकोर्निया, वो भी क्या है, एनर्जी का सोर्स है। वेस्ट मटेरियल सच एज मेन्योर, गार्बेज, वुड क्रॉप, रेसिड्यूस लाइक स्ट्रो, पील्स ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, फलों के जो छिलके हैं, उनका गुदा है, ये सारे के सारे, मोलस्कस, बायोगैस, कोकोनट, लिटर ऑफ लीव्स एंड फ्लोर्स, डंग इटीसी, ये सारे के सारे क्या है, बायोमास के सोर्स है। डंग एनिमल से मिला, लेकिन एनिमल से डंग कब मिला, जब उसने प्लांट को यूज में लिया, तो ये सारे के सारे बायोमास। सेकंड वुड आप लोगों को पता है किसे कहते हैं, मैंने कई बार बताया हुआ है, एक लाइन की डेफिनेशन फिर याद कर लीजिए। द सेकेंडरी जाइलम ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड वुड एंड वुड इज ए common source of fire. Wood is common source of fire which is being used by centuries. कई सेंचुरीज से वुड को फायर के रूप में काम में लिया जाता है आदमी के द्वारा। About more than 50% of population of India uses firewood for small scale industries and domestic use. In the underdeveloped and developing countries of Africa and Asia countries, wood is main source of energy. Use of wood as fuel is one of the important factor responsible for forest destructions and environment pollution in our country. Firewood has the following character. Firewood के क्या क्या character है? First, ये एक तो क्या है, easily available है. So first of all, easily available and for clothing or obtaining, it does not require any technical knowledge. इसको वुड को एनर्जी के रूप में ज्यादा उपयोग में क्यों लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, ये इजीली अवेलेबल है और उसको कलेक्ट और ऑब्टेन करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। सेकंड, इट इज रिसाइकलिंग रिन्यूएबल इज रेगुलर प्रोसेस। अगर प्लांट्स को ऊपर से काटते रहे तो वो दोबारा ग्रो होता रहता है, तो रिन्यूएबल सोर्स है। 90% ऑफ द प्योर वुड इज combustible and fourth is many plant species are used in the form of firewood और फिफ्थ क्या है, it can used as domestic to small scale industry level। और अच्छी जो लकड़ी होती है उसके कैरेक्टर्स क्या है, गुड फायरवुड, ये एक साल बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया है तो आप लोगों को याद करना है। अच्छी वुड के कैरेक्टर्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड हैव हाई
combustive power. Second, it should provide high calorie value upon combustion. Third, it should not break or form pieces upon combustion. जलने पर वो टूटने नहीं चाहिए छोटे छोटे टुकड़ों में. And fourth, it should have less amount of moisture and रेजिन सो इट कैन बी डिराइड सून. अगर उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगी, रेजिन ज्यादा होंगे तो उसको सोखने में टाइम लगेगा. इट शुड यील्ड लेस स्मोक एंड नो बैड ऑर्डर अपॉन कंबशन. यानी उसको जलाने पे ज्यादा उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए और ज्यादा कोई गैस, हानिकारक गैसें नहीं निकलनी चाहिए. ये क्या है, अच्छी वुड के कैरेक्टर्स है. और ये अच्छी वुड किससे मिल सकती है, तो कुछ एक प्लांट के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे देसी बबूल अकेसिया, नाइलोटिका, कुमटा अकेसिया, सेनेगल खैर अकेसिया, कटेचू, सीरिस एल्विजिया, लेबेक, जामुन, सीजियम, क्यूमिनम, आम, मेंजिफेरा, इंडिका, खेजड़ी, प्रोसोपिस, सिंडेरिया, आडू, एलाइंथस एस्केला, दोकड़ा, अगोनसियस पेंडुला, रोन्ज, acacia, leucophylla. So these are the source of wood. Now our third energy source is biogas or methane. 70% population lives in village of India, in our country. So where livestock is abundantly available. Animal dung is commonly used in the form of dried cakes as fuel. While its proper use is making compost manure and biogas formation. Animal dung should be regularly filled in the pits of proper size of making good quality of manure. The pit should be made at a higher elevation and its depth should not be more than a meter. The gas produced by fermentation of organic substances. The gas produced by fermentation of organic substances by bacteria is called biogas. In India, for production of biogas, animals' dung is most commonly used for obtaining energy. Biogas plants are in operation in many villages. This is not only a cheaper source of energy, but it plays an important role in controlling pollution as well. In a biogas plant, anaerobic fermentation is completed in 3 steps. So these are the 3 steps. प्रोड्यूसिंग बायो एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस पे एक्टिव होते हैं, काम करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिंपल मॉलिक्यूल्स में. सेकंड स्टेप में सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन पे पार्शियली एरोबिक और पार्शियली अनएरोबिक यानी एरोबिक और अनएरोबिक दोनों आंशिक रूप से काम करते हैं बैक्टीरिया और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ऑर्गेनिक एसिड में. और ऑर्गेनिक एसिड जो है फाइनली एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. और थर्ड स्टेप में एसिटिक एसिड जो है वो मेथेनोबैक्टीरिया की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मीथेन में. और जो शेष पदार्थ बचता है सलरी, उसको सलरी कहते हैं, उसको खेत में काम में ले सकते हैं खाद के रूप में सुखाने के बाद में. द हीटिंग वैल्यू ऑफ बायोगैस इज स्लाइटली लेस देन that of natural gas. The reason for the lesser energy yield of biogas is due to the presence of 31% carbon dioxide in it. The amount of CO2 is reduced in the biogas. Its heating value can be increased. It is being experimented that by mixing various waste material gas which has high value around produced biological fermentation. Biogas research station was established in 1961 at Ajitmal in the इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो बायोगैस रिसोर्स का इंडस्ट्री स्थापित की गई थी, बायोगैस रिसर्च स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961 एट अजीतमल इटावा डिस्ट्रिक्ट. कहां की, यूपी की. सबसे पहले यूपी यानी उत्तर प्रदेश में इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इसको एस्टेब्लिश किया गया था. नाउ नेक्स्ट आवर एनर्जी रिसोर्सेज रिमेन्स आर बायोडीजल, इथेनॉल फ्रॉम सेल्यूलोज एंड लिग्नोसेल्यूलोज एंड एल्गल फैक्ट्री. वी विल डिस्कस biodiesel. Diesel like liquid material obtained from biological material is called biodiesel. Biodiesel make up vegetable oil, fat and latex is a non-polluting
recycling fuel. Its chemical name is fatty acid methyl ester, FAME. केमिकल नेम क्या है इसका? फेम. फेम का मतलब क्या है, या यहां अपने से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि फुल फॉर्म ऑफ फेम. देन फैटी एसिड मिथाइल एस्टर. प्लांट्स कंजर्व द एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, सुगर और स्टार्च. Plant accumulate a special store of hydrocarbon in the form of oil in their seeds, which is used as source of energy during germination. Hypothesis of biodiesel is based on the very oil discovered of biodiesel. Rudolf Diesel made an engine using the oil. अब बायोडीजल के लिए रिसोर्सेज क्या है? तो बायोडीजल के लिए 2 टाइप के रिसोर्सेज है. बायोटिक रिसोर्सेज ऑफ बायोडीजल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट है वेजिटेबल फैटी ऑयल्स और सेकंड है पेट्रोप्लांट्स. फर्स्ट क्या है? जो वेजिटेबल ऑयल अपन खाते हैं ठीक है ना, वेजिटेबल फैटी ऑयल जिसमें क्या है, फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है, फैटी ऑयल. और सेकंड क्या है, पेट्रो प्लांट्स, यानी उनके ऑयल को अपन काम में नहीं लेते, उनमें लेटेक्स जैसे केमिकल्स जो है वो सीक्रेट होते हैं और उसी से कन्वर्ट करके बायोडीजल का फॉर्मेशन किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग वेजिटेबल फैटी ऑयल्स. लिपिड्स और फैटी ऑयल्स एंड फाउंड इन सिग्निफिकेंट अमाउंट इन सीड्स ऑफ सम प्लांट्स जस्ट लाइक सोयाबीन, mustard, instant sunflower, groundnut, jatropha, pogomenia. These lipid stores huge amount of energy. The liquid obtained by esterification of fatty acid. यहां वेजिटेबल ऑयल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एस्टरीफिकेशन से. एस्टरीफिकेशन से, सीड से एस्टरीफिकेशन करके इनसे फैटी एसिड प्राप्त किया जाता है. दैट इज प्रेजेंट, that is source of biodiesel. This biodiesel in its pure form can directly be used in digest डीजल इंजन विदाउट मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन इट. यानी जो इंजन में हम डीजल डालते हैं, जैसे कई ट्रक, बसें वगैरह, आपकी स्कूल बस डीजल से चलती है, तो यहां इन ऑयल को हम डायरेक्ट उस डीजल की जगह काम में ले सकते हैं, यानी बायोडीजल. बट price of edible oil in the developing country remains higher than that of the diesel, and production is edible oil is generally less in comparison to their demand. लेकिन क्या है, खाने का तेल और भी ज्यादा महंगा है, डीजल से ज्यादा अपने महंगा है, इसलिए इनको इस प्रकार से काम में नहीं लेते. तो फिर क्या करेंगे, तो जो अनवांटेड प्लांट्स उगे हुए हैं, ठीक है, जिनका ऑयल जो है वेजिटेबल ऑयल प्राप्त नहीं होता, एडिबल ऑयल प्राप्त नहीं होता, उन प्लांट से हम क्या करते हैं, बायोडीजल बनाते हैं. जैसे जेट्रोपा कर्कस, व्हाइट कसकर, रतनजोत, पोगेनविलिया या करंज, महुआ, केस्टर, नीम, इन प्लांट्स से अपन क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल प्राप्त करते हैं इनके एस्टरीफिकेशन से. दूसरा अपना पेट्रो प्लांट्स. कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जेशन ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इन future, scientists have discovered a group of such plants whose production can be used in the place of petrol, diesel, etc. Many plants of different families like Apocynaceae. The plant of these family, Apocynaceae, Asclepiaceae, Astraceae, Euphorbiaceae, Sapotaceae, Urticaceae, इनके प्लांट्स को क्या करते हैं, पेट्रो प्लांट्स के रूप में काम में लिया जाता है. प्रोड्यूस पेट्रो सब्सटेंसेस और product of photosynthesis gets converted into latex in these plants. This latex contains abundant amount of hydrocarbons. Thus this latex can be used in the vehicle in the place of petrol after mixing in with petrol. Research work is being carried out continuously on hydrocarbon producing at Indian Institute of Petroleum, Dehradun. तो एक पर्सन ये बन जाता है अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, कहां सिचुएटेड है, देहरादून में. बाय द केमिकल एनालिसिस ऑफ द लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूफोर्बिया लेथाइरस, ए गैस सिमिलर टू गैसोलीन हैज बीन ऑब्टेन्ड. द लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम केलोट्रोपिस प्रोसेरा, अपना जो आंकड़ा होता है केलोट्रोपिस प्रोसेरा, प्रोसेस ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन. दिस लेटेक्स contains 78% of carbon, 1.22% of hydrogen and 10.71% of oxygen. The ratio of carbon and hydrogen is similar to the ratio of gasoline or
फ्यूल ऑयल, गैसोलीन क्या है, एक फ्यूल ऑयल है, अपन जानते हैं। तो उसके समान कंपोजिशन किसका है, केलोट्रोपिस प्रोसेरा का जो लेटेक्स है उसका। बिकॉज दिस प्लांट कैन बी अल्टरनेटिव रिसोर्स ऑफ लिक्विड फ्यूल इन नियर फ्यूचर। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड पेट्रो प्लांट्स एंड देयर कल्टिवेशन इज नोन एज ए पेट्रोक्रॉप्स। तो पेट्रो प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनके लेटेक्स से पेट्रोल लाइक और डीजल लाइक या गैसोलीन के सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑब्टेंड होता है, वो पेट्रो प्लांट्स कहलाते हैं। और पेट्रो प्लांट्स की जो कल्टीवेशन है उसको अपन क्या कहते हैं, पेट्रोक्रॉप्स। और कौन कौन से प्लांट्स हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, यूफोर्बिया, लेथाइरस, एंटी सिफिलिस, यूफोर्बिया कॉर्डिफोलिया, यूफोर्बिया ट्रेक्युलिया, पैरा रबर जो हेविया ब्रांचेलियसिस का पौधा होता है, पेगोडा ट्री, पल्मोनेरिया स्पीसीज, आक, मदार, केलोट्रोपिस प्रोसेरा, फाइकस स्पीसीज, सेपोटा, ये सारे प्लांट्स जो हैं वो पेट्रो प्लांट्स कहलाते हैं। उसके बाद में देखिए अपना एक टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल इन राजस्थान एंड इंडिया। वो कोविड-19 के कारण अपने सिलेबस से हटा दिया गया और इस पार्ट में अब 2 जो सोर्सेज बचे उनको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।